Life in a world that keeps changing. Think that it's progress. Hello guys, welcome to my channel guys. So guys, today I am going to start a new unit from the class 11, that is P block element. Okay, so generally in P block element you have only to focus for two groups. Okay, that is group 13 and group 14, and group 15 to group 18 you have to study in class 12. Okay, so from P block element you have to study for group 13 and group 14. So group 13 and group 14 you have to study in a detailed way, in a detailed manner. So in class 11, so why these elements are called group, why these elements are called the P block element. That is, in group 13 you have to remember the elements, like start from the boron. So boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, so these are the elements from group 13, and also one more element is there, that is anunturium. Okay, so UUT, you can say it's a new discovered element, UUT. Okay, so these elements also you have to study in class 11. Okay, that is some elements you have to study, these elements you have to memorize for group 13, and for group 14 the elements are, it will be start from your carbon family now. So carbon, silicon, germanium, tin and lead. Okay, so these are the particular elements you have to study. Their compounds you have to study, their physical properties you have to study, important compounds of group 13 and group 14, then some physical properties, chemical properties, then some relationships, you can say. So basically these are some properties you have to study in a detailed manner in class 11. Okay, and among this, why this, the first question arises from this, why these elements are called the P block element. Why these elements are called P block elements. Okay, so for being a P block, a block element, you have to first know uh, the subshells, that is the p orbitals. What do you mean by the p orbitals? Okay, so what do you mean by the p orbitals? I think you have studied. Okay, if you don't study, if you don't studied all those things, then I have to say one more time. Okay, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि अगर एस ब्लॉक होंगे तो एस ब्लॉक में जनरली only one, you can say only one subshell सिंपली. सो एस ऑर्बिटल में एक ही घर होते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकता है. ठीक है, अगर आप पी ब्लॉक बोलेंगे, पी ब्लॉक मीन्स इट हैज़ 3 सबशेल्स, 3 पी ऑर्बिटल्स. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना एकोमोडेट हो सकता है? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन बी एकोमोडेट इन पी ऑर्बिटल्स. ओके, और अगर आप डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स पढ़ रहे, in class 12 you have to study this d block element. So d block element होने से d ऑर्बिटल का 5 सबसेल्स है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कितना होगा? 10. ठीक है, और अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, सो जनरली इट हैज 7 सबसेल्स, दैट इज कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम? 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो व्हाट आर द पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल्स? ओके, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. एंड इन क्लास 11 in atomic structures, when I will taught you, when I will teach you, not I've still now I have not started. So when I will teach you this particular unit from class 11, that is atomic structure, then this particular concepts will be clear. Okay, how this shapes looks like, and what about the where the electron probability is maximum in this particular orbitals. Okay, so generally S block, P block, D block and F block you have to study in a detailed manner in atomic structure. Okay, when I will teach you, that time the concept will be clear. So generally यहाँ पे हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को फोकस कर रहे हैं. नॉट दैट मीन्स अगर हम लोग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को देखते हैं तो जनरली इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट.
और अगर हम लोग डी ब्लॉक बोलना चाहा तो ग्रुप कितना होगा 3 से ग्रुप नंबर 12 दैट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होंगे जिसमें आपको लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट सीरीज, आपको याद रखना है ऐसा, लैंथेनाइट सीरीज प्लस एक्टिनाइट सीरीज, जनरली दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको क्लास 12 पे ये सब मिल जाएंगे इन अ डिटेल वे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पर्टिकुलर ये चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनरली आपको ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 अभी पढ़ना है। मैं आगे भी बोला, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शंस में मैंने बोला था कि आपको सिर्फ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 आपको स्टडी करना है। सो व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so why these elements are called the p block elements? See, any of the element, you just choose one element from group 13 and group 14. Okay, or simply you can choose group 13 to group 18. Okay, okay, I am taking one of the example, one of the element from group 13. Suppose I have chosen the first element, that is boron, and the first element from group 14, that is carbon. So we have to know the atomic numbers of this particular element. So carbon, boron is 5 atomic number, that is Z equal to 5 and Z equal to 6. Okay, because atomic number symbol is Z. Okay, so Z equal to 5 and Z equal to 6. Now if you want to write the electronic configuration of this particular element, then you can write 1:2, 2:2, 2p1. ठीक, और अगर इसको आप लिखना चाहो तो 1:2, 2:2, 2p2 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में इसको लिखा, कैसे लिखा था आप लोग ने, आप लोगों को याद है कैसे लिखा था आप लोग ने? आप लोग ने लिखा था 2 डॉट आप क्या लिखा था आपने यहाँ पे 2.3 ये लिखा था ना, और इसमें आप लोग क्या लिखते थे 2.4 लिखे थे आप लोग, ऐसे लिखे थे ना लोअर क्लासेस में आप लोग। ठीक है, अभी इसको फॉलो नहीं करना है आपको, अब इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, आपको अभी क्लास 11 पे आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में क्या बता रहा है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई दिस एलिमेंट आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट, लेट्स सी, जस्ट चेक द लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1s 2s। ये होता है 1s। ठीक है, सपोज ये होता है 1s, ये होता है 2s एंड 2p, दैट इज द सेकेंड नंबर ऑर्बिट। सो आप देख पा रहे हैं कि 2s तो ऑलरेडी फिल अप है, मतलब s ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड अप है, बट जो 2p ऑर्बिटल है यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट इज एंटरिंग इन p ऑर्बिटल, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट। लेट्स चेक द अनदर एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 14, carbon. Here also 2s orbital is fully filled, but the 2p orbital, the last electron entering in one of the p orbitals. So that's why if you move on, if you go on increasing from group 14 to group 15, that is boron, carbon, then what will come? Boron, carbon, then इसके बाद नाइट्रोजन, उसमें आपका क्या आ जाएंगे 2p3, आप ऑक्सीजन में जाएंगे 2p4, 2p5, 2p6। तो as you move from left to right, the last electron entering in one of the p orbitals. Similarly, अगर आप एल्यूमिनियम पे आएंगे तब भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, the last electron entering in one of the p orbital. और as we move from top to bottom, ये बात क्लियर करना, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव कर रहे, then what will happen? This determines what? ये 2s and 2p क्या इंडिकेट करता है? It belongs from the period 2 एलिमेंट। अगर आप नीचे जाएंगे, इसके नीचे आएंगे, दैट इज बोरोन के बाद आता है एल्यूमिनियम, ये आपको पीरियड नंबर 3 देंगे, और पीरियड नंबर 3 में क्या आएंगे, एक 3s आएंगे, 3p भी आएंगे, 3d भी आ जाएंगे, और 3d जो ऑर्बिटल होगा ये वैकेंट होंगे, 3s एंड 3p, 3s तो 2 होगा, 3p यहाँ पे 1 होंगे, मतलब यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है 3p ऑर्बिटल में,
तो ये किसका मैं बहुत बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम का बता रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर है 13, मतलब वैलेंस शेल्स होंगे 3s2 3p1। सो जनरली मैं ये सब चीज़ बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट हम लोग को अभी देखना है कि यहाँ पे जो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 है, यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एंटर कर रहा है p ऑर्बिटल पे। दैट्स व्हाई दिस इज आर नोन एज p block elements। and the first and foremost thing is that what will be the general electronic configuration of this p block element, क्योंकि आपको ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सो फिलहाल अभी हम लोग ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 को हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग असाइन करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। General electronic configuration, okay guys, so what will be the general electronic configuration? So यहाँ पे जो general electronic configurations होंगे from group number 13 to group number 18 में आपको एक general electronic configuration देखने को मिलेंगे। so यहाँ पे मैंने कुछ देर आगे ही बताया कि अगर आप हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सपोज मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं चूज करने वाला हूँ, सपोज फ्रॉम मैं ग्रुप 13 से स्टार्ट करूँगा। ग्रुप 13 का 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। तो पहला 13 है, तो 13 में क्या होता है जनरली हम लोग अगर फर्स्ट एलिमेंट को चूज करते हैं दैट इज बोरोन, इसके बाद आएगा कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन। सो अगर बोरोन का देखते हैं तो बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियन 10। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते जाइए, आपको देखने को मिल जाएंगे 1s2 2s2 2p1, कार्बन का ये 1s2 2s2 2p2, 7 नाइट्रोजन का ये 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का ये 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का आ जाइए 1s2 2s2 2p5, नियन का आ जाएंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में ला सकते हैं कि नहीं? हाँ, ला सकते हैं। देखो मिनिमम तो आ रहा है 1, ठीक है, बट मैक्सिमम कितना जा रहा है 6। 1s2 2s2 सब में कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब 1s2 2s2 तो कॉमन रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या असाइन कर सकते हैं, जो जनरली जो भी हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखते हैं हम लोग फोकस करते द वैलेंस शेल्स। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल फॉर द बोरोन इज 2s and 2p, दैट इज द सेकंड नंबर ऑर्बिट। नेक्स्ट आप आइए कार्बन पे, यहाँ पे भी सेकंड नंबर, 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 यहाँ पे भी सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक असाइन कर सकते हैं, दैट इज सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग असाइन कर सकते हैं एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक नंबर दैट इज ns2 होंगे ही। n मतलब इट इज़ अ पीरियड नंबर। सो जो भी मैंने एलिमेंट लिखा है यहाँ पे दैट इज कमिंग फ्रॉम द पीरियड टू एलिमेंट, सॉरी दैट इज ऑल आर कमिंग फ्रॉम द पीरियड नंबर 2 एलिमेंट। सो पीरियड नंबर 2 एलिमेंट क्या बोलता है कि आपका वैलेंस शेल्स सेकेंड नंबर ऑर्बिट पे होंगे, मतलब सेकेंड नंबर शेल पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो सेकेंड नंबर शेल्स मिल रहा है आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 2s2p, यहाँ पे भी 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 2s and 2p। तो यहाँ पे मेरा 2s and 2p बहुत कॉमन है इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड। तो यहाँ पे मैं ns2 लिख सकता हूँ, n मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड नंबर बिकॉज माई फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द p ब्लॉक एलिमेंट इज फ्रॉम द सेकेंड पीरियड। सो ns2 आप np जो लिखेंगे इट इज मिनिमम इट इज 1 एंड मैक्सिमम इट इज 6, दैट इज np 1 to 6। और अगर आप बोरोन का दे सकते हैं, बोरोन का अगर लिखना चाहे फ्रॉम दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आप आराम से लिख सकते हैं दैट इज 2s2 2p, इसके बाद यहाँ पे 1 होगा या 6 होगा तो p1 हो जाएंगे। ये आया कि नहीं? और 1s2 हम लोग क्यों नहीं लिखते, बिकॉज इट इज हर जगह में 1s2 इज कम्प्लीटली फिल्ड। सो एंड 1s2 इज द इनर कोर्स, इनर बहुत इनर मोस्ट शेल है, जस्ट
आफ्टर द न्यूक्लियस, सो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते. तो जनरली वी ओनली फोकस द वैलेंशियल्स एंड द वैलेंशियल इज रिटन एज लाइक दिस वे NH2 NP 1 to 6 एंड डिपेंड करेंगे अगर उसका पीरियड नंबर क्या है. ठीक है. और इससे भी हम लोग क्या निकल सकते हैं जनरली, दे आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो. सो विल डिस्कस इट लेटर ऑन. सो यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ आज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखा और हर एक एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इसका फर्स्ट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो भी था हम लोग ने इसको फॉलो किया. ठीक है गाइस. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट मोर एंड मोर वीडियोस about this particular chapter or particular unit. Okay, stay tuned, stay happy and love your mom and dad. Thank you so much.